During this Mass, let us pray for the following intentions. Thanksgiving to Mother Mary for the guidance and protection by Hyacinth. For the soul of Teresa Gaspar Charity. God's blessing on Rita Montero on her birthday. Thanksgiving to Our Lady of Good Health by William Francis. Good health and blessings on Aman Francis. Good health and God's blessing on Arik Mary on our birthday. Good health and God's blessing on Alison Julius Cardoza and family on the 15th wedding anniversary. Thanksgiving to Our Lady of Valankani for the blessings and graces received by Franklin family. Thanksgiving to Our Lady of Valankani by Kenny George. Thanksgiving to Our Lady of Valankani by Helen Joseph and family. Thanksgiving to Our Lady of Valankani by Odelia Kulasu. Thanksgiving to Our Lady of Valankani for good health and prosperity of family by Aishwarya. Good health of all family members by Amit Peter. Good health of all family members by Rita Peter. Thanksgiving by Pauline Francis. Good health of all family members by Pauline Francis. Thanksgiving to Mother Mary for good health of Lorak and D'Souza family. Thanksgiving from Albert G. Peter and family members. Thanksgiving by Avinash and Stella Anthony. Good health and safe delivery of Stella Anthony. Thanksgiving to Our Lady of Valankani by Rudy Salve. Thanksgiving to Our Lady of Valankani by Arik Mary Lucian and family. Thanksgiving to Our Lady of Valankani by Charles Francis. Thanksgiving to Our Lady by Raju Pillai. Thanksgiving to Our Lady of Good Health by Cecilia Francis Chowri. Thanksgiving to Our Lady of Valankani by Esther Peter. Thanksgiving for the good health from Peter Leonard and family. Thanksgiving for good health from Rommel Leonard and family members. Thanksgiving by Julie Andrade and family. Thanksgiving by Anisha. Thanksgiving to Our Lady of Valankani by Stella William Francis. For the good health of Hassan Garage family members. For the soul of Mrs. Emily Kandaswamy. For the soul of Mrs. Francis Xavier Paul. For the soul of Mrs. Catherine Paul. Special intention to Our Lady of Valankani by Mrs. Dimple Francis and family members. Thanksgiving to Our Lady of Valankani by Mrs. Dimple Francis and family. Thanksgiving to Our Lady of Valankani by Kitty Tandy and family. Thanksgiving to Our Lady of Valankani from Vikas Francis and family members. Thanksgiving to Our Lady of Valankani for good health of the family members by Bernardine D'Souza. For good health of Jaya Mary and Nada. Thanksgiving to Mother of Good Health by Caroline Kakde. For special intention of Mrs. Rita Salve and family. Good health and God's blessing on Mario Kakde on his birthday. Soul of R. Kandaswamy. Soul of Cecily Paul. Soul of Edmund Bastin. Thanksgiving by Philip Joseph and family members. For the soul of Roland and Rosemary Rapso. For the soul of Terence and Mario Rupaso. For the soul of Sylvester and Lausia George. Thanksgiving to Our Lady of Valankani by Rapso family. Thanksgiving to Our Lady of Valankani from Godfrey George family. For the good health of Swaminathan family members by James and Regina Swaminathan. For the soul of Rosario Swaminathan. Thanksgiving to Our Lady of Good Health by Manish Harrican. Good health and God's blessing for Arik Mary on our birthday by Mark. Thanksgiving to Our Lady of Valankani by Savio Frank and family. Thanksgiving to Our Lady of Valankani by Barbara Frank. For the soul of Madhusha Kiran Rodge and Renu Francis. Soul of Robin Ashish Francis. Thanksgiving to Our Lady of Valankani by Robert Charlie and family. Good health of Peter Robert Charlie. Thanksgiving to Our Lady of Valankani by Rajesh Lazarus and family. For the departed souls of Benedict family, Mass given by William Benedict. For the soul of Elmo Martins of Pune. Thanksgiving to Our Lady of Valankani by Alexander Gadge and family. Thanksgiving to Our Lady of Valankani by Paul Gaigole and family.
Thanksgiving to Our Lady of Merlin Carlo. Soul of Seraphine Frederick by Maximilian Carlo. For good health of Dorothy Bengra by Neha Bengra. Soul of Jacob Fredericks. Soul of Mary Joseph Frederick. Soul of Seraphim Frederick. Soul of Paul Caldius. Soul of Rosemary Benjamin. Soul of Vinita Benjamin. Soul of Xavier Joseph. For the good health of Amita Frederick. For the good health and blessings on the family members of Dilip and Rosalind Tirke. Thanksgiving from Daryl and Diana Frederick. For the good health from Narin David and family. Soul of Jennifer David. Thanksgiving Mass by Teresa Benjamin. Today, we are gathered here to celebrate the nativity of the Blessed Virgin Mary, for from her arose the Son of Justice, Christ our God. आज हम स्वास्थ्य की स्वामिनी वेलांकनी माता का पर्व भी मनाते हैं और आज 8 सितंबर 2020 के इस शुभ अवसर पर फादर एंटनी डिसूजा हमारे पल्ली के फादर रेक्टर के रूप में पद ग्रहण कर रहे हैं। ईश्वर ने इस कार्य के लिए उन्हें चुना है और साथ ही साथ उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारी भी दी है। आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान को चढ़ाने के लिए हमारे बीच हमारे महाधर्म प्रांत के महागुरु आर्च बिशप एलायस गुंसाल्विस उपस्थित हैं। वे फादर एंटनी डिसूजा को एसएफएस पल्ली के सभी अधिकार बहाल करेंगे। पवित्र कलीसिया के अधिकारों का प्रतीक मानकर अब बिशप स्वामी हमारे फादर एंटनी डिसूजा को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। हम सब खड़े होकर प्रवेश गीत में सहभागी हो जाएं। सुंदर की जीवन की भक्ति की जश्न मनाए मिलके गाए प्यार का सुंदर की जीवन की भक्ति की ईश्वर भक्तों का जश्न सुहाना ये झूम रहा देखो आसमाना ये अपनी प्रीत सच्ची प्रीत जश्न मनाए मिलके गाए प्यार का सुंदर की जीवन की भक्ति की सदा वो साथ रहा हम भूले उसे चला वो हर रास्ते जश्न मनाए मिलके गाए प्यार का सुंदर की जीवन की भक्ति की जश्न मनाए मिलके गाए प्यार का सुंदर की जीवन की भक्ति की चलाता रहा जीवन मिले प्रभु का आशीष न टूटे ये बंधन जश्न मना
मनाए मिलके गाए प्यार का सुंदर गीत, जीवन गीत भक्ति गीत। जश्न मनाए मिलके गाए प्यार का सुंदर गीत, जीवन गीत भक्ति गीत। ईश्वर भक्तों का जश्न सुहाना ये, झूम रहा देखो आसमाना ये, अपनी प्रीत सच्ची प्रीत। जश्न मनाए मिलके गाए प्यार का सुंदर गीत, जीवन गीत भक्ति गीत। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। हमारे ईश्वर के नाम पर यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के सामने फादर एंथनी के पल्ली पुरोहित पद की नियुक्ति पत्र पढ़ा जाए। Appointment number 17, 2020. Letter of appointment. By the grace of God and favor of the Apostolic See, Archdiocese of Nagpur, by virtue of my office as the Archbishop of Nagpur, I hereby appoint you, Reverend Father Anthony D'Souza, Rector at St. Francis de Sales Cathedral, Nagpur, and Chancellor of the Archdiocese of Nagpur, with effect from June 15, 2020. You will enjoy all the rights and powers and will be subject to all obligations attached to the office in the Code of Canon Law only from the date you take charge of the parish. In testimony whereof I affix my signature and seal by the authority of the Archbishop Elias Gonzalez, Archbishop of Nagpur, given at Archbishop's House, Mohanagar, Nagpur on 24th May 2020. आदरणीय फादर्स, सभी सिस्टर्स और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अभी जो नियुक्ति पत्र पढ़ा गया वो मैं अपने फादर पल्ली पुरोहित फादर एंथनी डिसूजा को अर्पित करता हूँ। पाप निवेदन सुनने का स्थान पवित्र है। यहाँ स्नेह और प्रेम का वातावरण निर्माण होता है। अब बिशप स्वामी पल्ली के प्रमुख पुरोहित अर्थात फादर रेक्टर फादर एंथनी को इस गिरजाघर में पाप स्वीकार सुनने का अधिकार देंगे। वे ईश्वर के प्रतीक के रूप में उन्हें पाप स्वीकार सुनने के स्थान के आसन पर बैठाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम दो महत्वपूर्ण समारोह समर्पित कर रहे हैं। पहला है पवित्र मरियम माँ का जन्मदिन और उसी ही दिन अपने पल्ली के प्रमुख पुरोहित फादर एंथनी डिसूजा का पद ग्रहण। ये दोनों समारोह के साथ जब हम इस भोजन में सहभाग लेते हैं, ये एक संस्कार है और सभी संस्कारों का केंद्र स्थान जो हम मनाते हैं, उन सभी का अधिकार फादर एंथनी को इस विधि के द्वारा इस पल्ली के लोगों के लिए दिया जा रहा है। इस पल्ली के प्रमुख पुरोहित के रूप में भाविकों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह लोगों के पाप क्षमा करने का अधिकार
मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ।
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, प्रभु क्रिस्त के जन्म में तेरे सेवक सेविकाओं की मुक्ति का प्रारंभ हुआ। उनकी माता के जन्मोत्सव में तू हम पर कृपादान बरसा और हमारा हृदय शांति से भर दे। यह प्रार्थना सुन उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आमीन। सुसमाचार का प्रचार का कार्य पूर्ण रूप से करने के लिए बिशप स्वामी अब फादर रेक्टर को पवित्र शास्त्र देते हैं। प्रचार सभी लोगों के बीच में फैलाने के लिए मैं तुम्हें यह पवित्र बाइबल प्रदान करता हूँ और सुसमाचार प्रचार का अधिकार प्रदान करता हूँ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाएं, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। प्रभु की वाणी।
घोष धन्य एवं अत्यंत प्रशंसनीय हैं। मसीह हमारे ईश्वर न्याय के प्रभाकर आपसे उत्पन्न हुआ है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय। आदरणीय फादर्स, सभी सिस्टर्स और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम मां मरियम का जन्मदिन और हमारे पल्ली के प्रमुख पुरोहित का पद ग्रहण समारोह मना रहे हैं। यह दिन हम सभी पल्ली वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण और पल्ली के जीवन में आनंद का और जल्लोष मनाने का दिन है। बल्कि हम अपने अपने घरों में सीमित है और आज घर में बैठकर यह समारोह मना रहे हैं। सालों से हम यह समारोह बड़े धूमधाम से मनाते थे, बल्कि आज हम अपने अपने परिवारों के साथ मना रहे हैं। तो भी
आज हमें मां मरियम एक नई आशा, एक नई दिशा और एक नया स्वप्न दिखा रही है। हमारे नए जीवन का उमंग दिखाती है। वो अपने जीवन में जिस तरह से जी रही थी, उस मरियम का जीवन आज उनके जन्म के द्वारा एक नया संदेश हमें ले आई है। इसलिए पूरी सृष्टि को इस दिन की महिमा का जश्न मनाने हैं। इस जश्न मनाने के लिए प्रशंसा और हम नृत्य गायन करके एकजुट होकर यह पर्व मनाते हैं। आज स्वर्ग और धरती पर रहने वालों में से एक आम दावत है। हर इस बीच को जो दुनिया और दुनिया के ऊपर जो है वो आनंद के साथ मिलजुल कर एक साथ जो ब्रह्मांड का निर्माण करता है, उसके लिए आज मरियम के जन्म से यह मंदिर बनाया गया है। जीवन को नवनिर्मित किया जा रहा है, जो निर्माता के लिए एक दिव्य आवास मरियम के जन्म से बनाने की शुरुआत हुई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में अभी अभी हम लोगों ने सुना कि जिस ईश्वर ने मरियम को निर्माण किया, उनको इस धरती पर जन्म दिया, इस ईश्वर की कृपा से ही एक नई रिश्ते की शुरुआत ईश्वर हमारे साथ करते हैं। एक नया रिश्ता ईश्वर हमारे साथ जोड़ना शुरू करते हैं। मानवता महान पारंपरिक संबंधों की कहानी कि जिसके बिना हम दुनिया में सिर्फ एक और पशु प्रजाति होंगे। यह इतना खुलासा करता है कि नए नियम की शुरुआत, नया करार की शुरुआत रिश्ते की इस कहानी को स्वीकार करती है और ईश्वर की हमारे साथ होने की इच्छा को प्रकट करती है। कई ईसाई समुदाय कहते हैं कि वो मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है और मेरे साथ ईश्वर के आयाम पर हम जोर देते हैं, वो मेरा उद्धार करता है। बल्कि हम कैथोलिक जो विश्वास करते हैं, जो आज के सुसमाचार में कहा गया कि ईश्वर हमारे साथ, जो ईश्वर है इम्मैनुअल, गॉड विथ अस, इस पर हम जोर देते हैं। गॉड विथ अस, ईश्वर हमारे साथ है, मेरे साथ नहीं बल्कि हमारे सभी लोगों के साथ है। यह हमारे दृष्टिकोण और हमारे आसपास की दुनिया के दृष्टिकोण में बहुत अंतर करता है, मेरे साथ और हमारे सभी के साथ। जब हम कहते हैं हमारे सभी के साथ, तो हमारे एक दूसरे को रिश्तों में एक नया दृष्टिकोण आता है और हमारे रिश्तों की वेब, एक नेटवर्क जो हम कहते हैं, वो बनाना शुरू होता है और उसके बारे में जागरूकता, ईश्वर की आज्ञाओं का, उनके कायदे कानून को एक नया अर्थ देता है।
जब हम सभी एक दूसरे से रिश्तों के धागे से बांधे जाते हैं तो एक नया अर्थ उसे प्राप्त होता है। अभी हम सब कोविड-19 के कारण अपने अपने घरों में सीमित है, लेकिन हर आपत्ति का एक अच्छी बाजू भी होती है ना। आपत्तियां तो आती है, हम हर एक के जीवन में आपत्ति एक जीवन का भाग है, बल्कि उस आपत्ति में भी एक अच्छी बाजू जो हम देखते हैं उस पर हम चिंतन करना आवश्यक है, मनन करना आवश्यक है। क्या हम घरों में सीमित होने के कारण हम अपना ख्याल करना शुरू किया? मेरे जीवन का जो आवाज है, मेरे भीतर का आवाज, मेरे मन का दिल का आवाज सुनने के लिए हमें समय मिला। नहीं तो हम भागदौड़ करते थे, इधर जाओ उधर जाओ, वहां जाओ वहां यहां जाओ, और अपने आप पर ध्यान रखने को, अपने आप को पहचानने को हमें समय नहीं था। यह एक उचित बाजू है। इस महामारी के कारण हम यह तीर्थ यात्रा शुरू करना आवश्यक है। जैसे मरियम कि तीर्थ क्षेत्र में हम लोग बहुत साल जाते थे। कोई लोग वेलंकनी जाते हैं, कोई लूड्स में जाते हैं, कोई माउंट मेरी में जाते हैं, इधर जाओ उधर जाओ। आज कहाँ है? अपने अपने घरों में हम सीमित हैं। और ये सीमित होने के कारण ये यात्रा, ये तीर्थ यात्रा हमारे दिल में करने की आवश्यकता है। हमें खुद को पहचानना है कि क्या मेरे दिल में शांति है, और मेरे पास सब होने के कारण भी मैं अशांत क्यों हूं? क्यों मुझे इस जीवन में भागदौड़ करना पड़ता है? यह सारे समस्याएं, सारे प्रश्न के जवाब हम अपने आप में ढूंढने की जरूरत है, और यही समय ईश्वर हमारे लिए दे रहा है। इस समय कोविड-19 महामारी ने दिखाया है कि मानव प्रजाति इतनी नाजुक क्यों है, इतने कमजोर क्यों है हम, जो कि हम बहुत बड़ी औद्योगिक प्रगति कर चुके हैं, प्रायोगिक प्रगति कर चुके हैं, और भौतिक संपदा में हम जो कुछ दुनिया में मांगता है वो पाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास आज सब कुछ आया है, शास्त्रों ने सब कुछ हमारे लिए निर्माण किया है। इसके बावजूद यहां तक कि हमारे सबसे अमीर लोग, अमीर देश, अमीर राष्ट्र आज इस कोरोना वायरस के कारण जो इतना सा हमारे आंखों से भी देख नहीं सकता, इतना सूक्ष्म जीव जो है, a small chromosome which is not visible to your eyes, even you cannot see on properly with the proper lenses, इतना छोटा सा यह जीव हम सभी के जीवन के लिए खतरा बन गया है। क्या यह खतरा हम महसूस करते हैं? और ये जब खतरा हम महसूस करते हैं तो उसके कारण भी हमें ढूंढना चाहिए। क्यों यह खतरा निर्माण हुआ है? ये क्यों हो गया? कैसे हो गया? ये क्या ईश्वर ने किया कि हमारे मानव की गलती से, जो हम अपने आप को खुद भगवान के तरीके समझने लगे हैं, वो अपने आप के गलती से ये बड़ी महामारी हो रही है। यह हमें महसूस करना है, इसका स्वीकार करना है, तो ही हम इसके कारण ढूंढ सकेंगे। पोप फ्रांसिस हमारे लिए इसका कारण देते हैं
कि जो ईश्वर ने ये सृष्टि निर्माण किया, ये निसर्ग निर्माण किया, उसका हम इतना स्वार्थ लूटा कि अपने आप के लिए, मेरे लिए जो कुछ मांगता है उसको पाने का प्रयास किया। और इस प्रयास में इतनी भागदौड़ हो रही थी कि अपने आप पर और आजू बाजू पर देखने को भी हमें समय नहीं मिला। इसलिए लाउदातो सी जो परिपत्रक संत पिता फ्रांसिस ने हमें 5 साल पहले दिया था, उसका स्मरण ये साल करने के लिए उसने हम सभी लोगों को आह्वान किया है कि हम सभी लोग यह केयर फॉर कॉमन होम, यह जो विश्व है, हमारी जो एक रहने का आवास है, हम कहते हैं विश्वची माझे घर, द होल वर्ल्ड इज माय हाउस, अ होम। इज दिस होम सेफ? आज जो हम इस सृष्टि में, इस वातावरण में जो बदलाव आया है, इसके ऊपर चिंतन करना है, क्यों ये हो रहा है। और इसीलिए पोप फ्रांसिस हमें याद करते हैं। मुझे आपसे पहले निवेदन है कि हम सभी लोग यह समय जो दिया है, विशेष करके 1 सितंबर से 4 अक्टूबर तक, जब हम इस मरियम के पर्व मना रहे हैं, तभी से संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के पर्व तक हमें विशेष प्रार्थना, त्याग और उपवास करने का आह्वान संत पिता फ्रांसिस ने किया है। इस दिनों में हम लगे रहना चाहिए कि जो विश्व की हानि इस मानव जाति ने की है, उसके बारे में हम पश्चाताप करना आवश्यक है। हमारी भूल हम स्वीकारना है और उसके ऊपर इलाज हमें ढूंढना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखना है कि हम कई बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। हम बचत करें, हमारे पैसे की, बल्कि पैसे की नहीं, पानी की, हमारे इलेक्ट्रिसिटी की, हमारे पेपर्स की, जो निसर्ग पर बड़ी मात्रा से धोखा निर्माण करता है। निसर्ग में जो ईश्वर ने दिए हुए सभी संपत्तियां हैं, उसका ज्यादा इस्तेमाल करना, इसलिए हमारे लिए धोखा निर्माण होता है। तो इसलिए हम उसका बचत करना आवश्यक है। और हमें इस ऊपर भी ध्यान देना है कि जो हमारे खनिज संपत्तियां हैं, कोयला है, तेल है, जो स्टील है और बहुत सारे खनिज संपत्तियां हैं, ये ईश्वर ने हमारे लिए दिए हैं। खाली मेरे लिए नहीं, हमारे सभी के लिए। जब मेरे लिए मैं सोचता हूं तो हम स्वार्थी बनते हैं। अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट वन मैन्स ग्रीड। हम सभी के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन एक इंसान के स्वार्थ के लिए वो पूरा नहीं है। इसलिए हमें उन पर ध्यान देना है कि जो खनिज संपत्तियां हमें मिली है, जो वायु है, हवा है, जो पानी है, जो आवाज, उन सभी का प्रदूषण जो हम करते हैं वो कम करें। और इसके द्वारा ईश्वर की जो रचना है उसको संभाले और आने वाली पीढ़ी के लिए
हमारे बाद जो आने वाले हैं उनके लिए कुछ देने के लिए रखे तो वो लोग कम से कम अपने को सलाम करेंगे, नहीं तो हम लोगों को गालियां देंगे। आने वाली पीढ़ी को कुछ हम देने के लिए रखे, ये ही इस सृष्टि की रचना निर्माणकर्ताओं ने हमारे लिए मांग की है। आज तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पल्ली के मुख्य पुरोहित, प्रमुख पुरोहित फादर एंथनी को जो ये समारोह द्वारा हम पद ग्रहण कर रहे हैं, यह समारोह संस्कारों से संबंधित है। जो संस्कार हम मनाते हैं, जो 7 संस्कार हम इस पल्ली में मनाएंगे, उस सभी संस्कारों का अच्छी तरह से आयोजन करना, नियोजन करना और उसके द्वारा विश्वासियों को विश्वास में बढ़ाना, यह आज के इस विधि का पद ग्रहण का अर्थ है। इसलिए हम शुरुआत से देखा कि जैसे हम इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उनका स्वागत किया गया। स्नान संस्कार के द्वारा हम सभी लोगों का स्वागत हम प्रवेश मंदिर में करते हैं। पश्चाताप विधि द्वारा हमारे पापों का क्षालन करते हैं। बाद में हम देखते जाएंगे कि कैसे तरह संस्कारों से निगडित यह विधि जो हम मनाते हैं, प्रभु भोजन मनाते हैं, उन पर आधारित सभी संस्कारों का आयोजन, नियोजन और पालन करना प्रमुख पुरोहित की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्हें अपनी सहायता को, हम सभी पल्ली वासियों को उनको सहायता करना, उनके लिए प्रार्थना करना और पल्ली के जीवन में सहभागिता दिखाना, यह हमारे सभी का कार्य है, हमारे सभी की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। और ये कर्तव्य निभाने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। वो आज जिस मरियम का जन्मदिन मनाते हैं, जिस मरियम का जीवन ईश्वर का आवास घर बना, ईश्वर के पुत्र ने उनके दिल में अपने शब्दों द्वारा प्रवेश किया और वो गर्भाशय में बढ़ते गया और एक नया आवास, एक नया मंदिर मरियम ने अपने प्रभु के लिए दिया। वैसे ही हम सभी के लिए यह मंदिर अपने प्रार्थना, सहभागिता और सेवा कार्य का मंदिर बन जाए, यही प्रार्थना आज के दिन यह पर्व मनाते हुए हम सभी पल्ली वासियों, हमारे सभी के लिए करते रहे। यही आज का शुभ संदेश मैं आपको प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। पवित्र कलीसिया की जिम्मेदारियों को योग्य रीति से पालन करने के लिए और परमेश्वर के वचनों में एक होकर रहने के लिए अब बिशप स्वामी फादर रेक्टर को जिम्मेदारी सौंपते हैं। धर्माध्यक्ष के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और क्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिस्त के रहस्यों का, खासकर पवित्र मिस्सा
तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से क्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करें। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य का प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। आमीन। पवित्र कलीसिया की सभी जिम्मेदारियों को प्रभु यीशु क्रिस्त के बताए गए पथ पर और ईश्वर के साथ एक साथ रहने के लिए अब फादर एंथनी डिसूजा अपना विश्वास प्रकट करेंगे। हम सभी खड़े रहकर शांत रूप से अपने दिल में अपना विश्वास प्रकट करेंगे। आप मन ही मन मेरे साथ अपना विश्वास प्रकट कीजिए। मैं फादर एंथनी डिसूजा दृढ़ और पूर्ण विश्वास के साथ यह प्रकट करता हूँ कि स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हैं। वहाँ से वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। साथ ही साथ लिखित रूप में और परंपरा के अनुसार मिले हुए प्रभु शब्द पर मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ। दैवी प्रकटीकरण जो कलीसिया ने सर्वसाधारण एवं वैश्विक रूप में प्रकट किया है, इस पर मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास एवं नैतिकता के विषय में कलीसिया द्वारा दिए गए व सिखाए गए बातों को मैं दृढ़तापूर्वक स्वीकार करता हूँ। संत पापा द्वारा एवं धर्माध्यक्षों की सभा द्वारा प्रकट किए या होने वाले सभी बातों पर मैं विश्वास करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता ईश्वर हम सभी के निवेदनाओं और प्रार्थनाओं का स्वीकार करते हैं। आज के दिन जब हम यह पर्व मनाते हैं और हमारे पल्ली के प्रमुख पुरोहित को पद ग्रहण करते हुए हम हमारे सभी परिवारों के लिए प्रार्थनाएं चढ़ावी और ईश्वर के इस वेदी पर यह प्रार्थना चढ़ाते हुए हम कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। For our Holy Father, Pope Francis, cardinals, bishops and priests, especially our Archbishop Elias Gonsalves and the priest of our Archdiocese, that they may preach the word of God boldly without compromise, be witnesses of the gospel in their very lives, and shepherd the flock with love and compassion. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For country, that our leaders may rule the nation with justice and truth,
work hard for unity and peace within as well as with the neighboring countries, and that they may contribute their best to build our nation towards growth and prosperity. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For Reverend Father Anthony D'Souza, who is installed today as director of our SFS Cathedral Parish, that he may receive a fresh anointing of the Holy Spirit to discern the will of God, to fulfill his mission effectively for the good of our parishioners. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray that our parish community receive the grace to cultivate and care for creation as God calls us. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. In gratitude for God's gift of creation, which He entrusted to humankind to cultivate, till, and protect, may we honor our responsibility as stewards of the gift. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all the doctors, nurses, and other health workers who toil day and night to fight against the deadly coronavirus, may be strengthened in their mission, and for all those who are affected by the pandemic, very especially in our own country, that they may receive the healing touch of the Lord in mind and body. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all our parishioners, that God will give us the grace to know His presence in our everyday lives, and to know Him as our constant companion in times of troubles, and our sure hope in the moments of uncertainty. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us pause for personal and local needs. We pray to the Lord. Lord, hear Hear our our prayer. prayer. Heavenly Father, we thank and praise you for giving us this day, the birthday of our Blessed Virgin Mary, and the installation of our parish priest, the rector of this cathedral, Father Anthony D'Souza. Bless him, bless the parish, and bless everyone, every family. Give them good health of body and mind, and may we overcome this time of COVID-19, the pandemic that which has created lots of difficulties, problems, and struggles in our life. With hope and new vigor, we pray to Blessed Virgin Mary. Through her intercession, we may overcome this. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. Amen. तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं इतनी दया कर तू मेरे ऊपर, बन जाए रोटी तेरा तन। श्रद्धा से आया जाकर सुन
मुझसे, तूने किया जो मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहना किया, जैसे तूने जाना मैं वैसे किया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी और समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तेरे शरीरधारी एकलौते पुत्र हमारी सहायता करे। उन्होंने कुंवारी मरियम माता से जन्म लेकर उन्हें अक्षता रखा और उनका कुंवारपन पवित्र किया। वे ही हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के इस पर्व के दिन तेरी स्तुति और गुणगान गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे एकलौते पुत्रों को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारपन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, पावन पावन हे प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से, तेरी महिमा से है भरपूर। स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से, तेरी महिमा से है भरपूर। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार
अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपी गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और वो रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और वो कटोरा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस सदा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अलायस गोंजाल्विस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा हमें प्रेम से सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन की सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, जिनकी जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, उनकी अतिशुद्ध वर संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, अब पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहते हैं। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे,
तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। पवित्र कलीसिया में क्रिस्तीय विश्वासियों को क्रिस्त शरीर द्वारा आध्यात्मिक भोजन देने के लिए क्रिस्त के संदूक की चाबी बिशप स्वामी फादर रेक्टर को प्रदान करते हैं। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आध्यात्मिक रीति से यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप
परम पवित्र संस्कार में उपस्थित है। सब लोगों तथा सब वस्तुओं से ज़्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका आलिंगन करता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मुझे कभी भी आपसे अलग न होने दें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपनी कलीसिया को पावन संस्कारों से पुष्ट किया है। कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव में वह आनंद विभोर हो उठे, क्योंकि मरियम हमारी मुक्ति का उदय और समस्त संसार की आशा है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। कलीसिया के दैनिक कार्यों के लिए अब बिशप स्वामी फादर एंथनी डिसूजा को चर्च रजिस्टर प्रदान करेंगे। फादर रेक्टर ने अपना कार्यभार स्वीकार कर लिया है, इसलिए वे प्रतिज्ञा लेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे। मैं फादर एंथनी डिसूजा पल्ली के प्रमुख पुरोहित पद का स्वीकार करते हुए यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सदैव कैथोलिक कलीसिया से मेरे शब्दों द्वारा एवं कृति द्वारा निष्ठावान बना रहूँगा। मैं अत्यंत जिम्मेदारी से एवं निष्ठा से मुझ पर सौंपा गया कार्य पूरा करूँगा, जिससे मैं समस्त कलीसिया और स्थानिक कलीसिया के बीच में धर्म कानून के अनुसार अच्छे संबंध प्रस्थापित कर सकूं। कलीसिया ने मुझे दिया हुआ यह कार्य करते समय मैं हमेशा सच्चा विश्वास बनाए रखूंगा और उसे दूसरों तक पहुंचाऊंगा और प्रकट करूंगा, जिससे हर प्रकार के गलत बातों को रोक सकूं। मैं कलीसिया के सर्व साधारण नियमों का पालन करूंगा और उसका रक्षण करूंगा। पवित्र व्यक्ति जो सच्चे धर्म पंडित हैं, उन्होंने दिए हुए बातों का मैं आज्ञाकारिता से पालन करूंगा। कलीसिया के नाम पर प्रेरितों का कार्य आगे बढ़ाने के लिए मैं धर्म प्रांतीय धर्माध्यक्ष को सच्चे विश्वास के साथ सहायता करूंगा। इसलिए इस पवित्र बाइबल पर हाथ रखते हुए मैं हे प्रभु, मैं तुम्हारी सहायता की याचना करता हूँ। यह मेरे उपस्थिति में प्रतिज्ञा की गई है, उनका मैं स्वीकार करता हूँ। मैं धन्यवाद के 2 शब्द देना चाहूँगा। सर्वप्रथम पिता ईश्वर को
और माता मरियम को, और विशेष रूप से हमारे श्रद्धेय आदरणीय आर्च बिशप स्वामी एलियास गोंजाल्विस को जिन्होंने आज पर्व का मिस्सा चढ़ाया और अपने सुंदर प्रवचन द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया, और साथ साथ मुझे पल्ली पुरोहित पद ग्रहण विधि के लिए यहाँ उन्होंने ये कार्य करवाया, मुझे जिम्मेदारी सौंपी, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आशा रखता हूँ कि मैं इसका योग्य बनूँ और सारे ताकत तन मन धन से आप लोगों की सेवा करूं। साथ साथ हमारे इन 9-10 दिनों के दौरान जो क्वायर मेंबर्स ने अपने सुंदर और भक्तिमय गीत द्वारा हमारा यहाँ वातावरण बनाया भक्ति और प्रार्थना का, डैरिल फ्रेडरिक और मर्लिन कार्डो का मैं आभारी हूँ। और जो यह तकनीकी माध्यम द्वारा प्रसारित किया गया है इन 9-10 दिनों का कार्यक्रम मिस्सा पूजा, डेनिस फ्रेडरिक का मैं आभारी हूँ। और फ्लैग होइस्टिंग के दौरान जो सिस्टर सुपीरियर और कम्युनिटी और उनके कैंडिडेट्स द्वारा जो प्रेयर डांस किए, उस दिन का कार्यक्रम उन्होंने अच्छे ढंग से निभाया, उनका मैं आभारी हूँ। और इन दिनों ऑल्टर की सजावट, हमारे माता मरियम की प्रतिमा की सजावट जो सुंदर तरीके से उन्होंने सजाया, इन सिस्टर के कॉन्वेंट्स ने, सेक्रेड हार्ट सिस्टर्स, FCC सिस्टर्स, ASMI सिस्टर्स, पीटर क्लेवर सिस्टर्स, पवित्र हृदय सिस्टर्स और मिसेस लूर्ड मैरी का मैं आभारी हूँ। और हमारे फादर्स लोगों का जो इन 9 दिन यहाँ आकर के हमारे लिए यहाँ मिस्सा चढ़ाया और अपने उस देश द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया, उनका मैं भी आभारी हूँ। और जिन लोगों ने जो साड़ीज़ या फ्लैग्स या फूल डोनेट किए नोवेना के दौरान, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और अपने पल्ली के चर्च के जो सैक्रिस्टन है मिस्टर राजेश एंथोनी, जो उन्होंने इन दिनों चर्च की सफाई की अरेंजमेंट्स किया, उनका मैं आभारी हूँ। और हमारे आर्च डायसिस के मीडिया और कम्युनिकेशंस का जो ग्रुप है, उनका मैं रिकॉर्डिंग और टेलीकास्टिंग के लिए धन्यवाद देता हूँ। और विशेष करके कैमरा के पीछे और घंटों रात भर वो मेहनत करते रहे एडिटिंग के लिए, फादर जोमिस का मैं आभारी हूँ। और हमारे सहायक जो फादर्स हैं पल्ली में, फादर दीपक, फादर बाला, उसका मैं आभारी हूँ। और आज इस सर्विस के दौरान, विधि के दौरान फादर रंजित ने सब कुछ संभाला और अच्छे सुचारू रूप से इसको निभाया, उसका मैं आभारी हूँ। अंत में मैं यही कहूँगा कि हमारा मुख्य कार्य है कि ईश्वर का वचन और संस्कारों द्वारा क्रिस्तीय जीवन जो है, पल्ली का जीवन जारी रखना और बढ़ाना। और जो अपने SCC ग्रुप्स हैं, जो दूसरे क्रिस्तीय भाइयों के साथ एक्यूमेनिज्म की भावना और अन्य धर्मों के बीच जो इंटरफेथ डायलॉग है, उसका भी हम ध्यान रखेंगे। और आपके प्रार्थना और सहयोग बिना कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर की कृपा सदा और सदैव हमारे साथ रहे, हमारे बीच रहे। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। वेलांकनी की माता से रोगियों की प्रार्थना। हे कुंवारियों की कुंवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, वेलांकनी में विराजमान ईश्वर की माता, तू हमारी आत्मा और शरीर का
सहारा है। तेरी दया और भक्ति पर पूरी आशा रखकर हम तेरे पास दौड़ आते हैं। हमारा रोग दूर कर कि हम तेरे पुत्र की और तेरी महिमा गाएं। सभी रोगियों को ढांढस दिला, यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला। उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामयी माता, हमारे कष्टों को दूर कर, अथवा हे स्वास्थ्य की माता, हमें वह सहन शक्ति दे कि हम सभी सांसारिक प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रखें। हे दयामयी माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चय है कि हमारे संकट में तू हमारी मदद करेगी। तू ही पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वासन में रोते अभागों के आंसू तू ही पोंछ सकती है। तू ही क्रिस्तियों की सहायता है। क्रिस्त की माता होने से तू ही क्रिस्तियों के पक्ष में सिफारिश कर सकती है। हे दयामयी और शक्तिमती माता, हमारी देखभाल कर, कष्ट पीड़ा से हमारी रक्षा कर। हे स्वामिनी, प्रार्थना कर कि हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता सके। आमीन। आज माँ मरियम का जन्मदिन मनाते हुए हम सभी अपने घरों में सीमित होने के बाद भी इस भोजन में सहभाग लिया, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। और आज के इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आप सभी को दे रहा हूँ। मे गॉड ब्लेस यू एंड मे द मदर ऑफ गॉड गिव यू good health and body of mind and strength for your soul through her intercession. I also wish Father Anthony congratulations to you, Father Anthony, and wish you all the best for coming years for your service in the Cathedral Parish. Once again, I thank all of you, my dear people. All of you participate in this virtual Mass that which we celebrate. In any way, you try to participate in this Eucharist and keep the faith growing and strengthening. I wish you all the best and wish you a happy feast on the occasion of Blessed Virgin Mary. Feast of Blessed Virgin Mary. हम अपने सर झुकाकर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। धन्य कुमारी मरियम, जिसने ईश्वर के पुत्र से जन्म लेकर मानव का उद्धार किया, वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर आशीर्वाद देता रहे। आमीन। जिन धन्य कुमारी मरियम के द्वारा आप लोगों को जीवन दाता प्राप्त हुए हैं, उनके संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहे। आमीन। आज आप लोग भक्ति भावना से भरकर माता मरियम के जन्मदिन का यह पर्व समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इन्हीं की प्रार्थना से आप लोग आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त करें। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे।
ईश्वर को धन्यवाद। सच है अभी तक